میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، سبحان اللہ، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ سبحان اللہ، اللہ نے سبحان آپ کو اللہ، آپ کے اختیار میں دے دیا ہے تقدیر کا دفتر، عبد القادر یہ لو جو چاہو کرو۔ سبحان اللہ، بات آئی ہے تقدیر کی، ارے وہ تو جنتی کو جہنمی کو جنتی کر سکتے ہیں، تو مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، جو مقدر میں نہیں ہے وہ لینا ہے تو غوث پاک کی چوکھٹ پہ آؤ، سبحان اللہ، غوث پاک کی چوکھٹ پہ آؤ، لیکن لینے کے لیے دل چاہیے۔ بے شک، ایسے ڈاما ڈول بن کر آؤ گے تو نہیں ملے گا، یقین لے کر کے آؤ۔ ایک عورت آئی غوث پاک کی چوکھٹ پر، حضور اولاد نہیں ہے، فرمایا تیری تقدیر میں نہیں ہے، حضور اولاد نہیں ہے، آسمان کی طرف دیکھا کہ تیری تقدیر میں نہیں ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو لوح محفوظ پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے نبی کے وفادار بن جاؤ، اللہ کہتا ہے ارے دنیا کیا چیز ہے میرے بندے، تو میرے حبیب کا وفادار بنے گا تو میں خود تیرا ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، ارے جب خدا کسی کا ہو جائے تو پھر رہ کیا جاتا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو غوث پاک وفاداران مصطفیٰ ہی میں نہیں بلکہ غوث پاک تو وفاداران مصطفیٰ کے یعنی اولیاء اللہ کے گروہ کے سردار ہیں۔ وہ عورت آئی، لینے کے لیے یارو دل چاہیے، یقین چاہیے۔ غوث پاک کو تو سب مانتے ہیں لیکن دل کی گہرائیوں سے کتنے مانتے ہیں؟ اللہ اکبر، میرے غوث کی شان یہ ہے، جب اس عورت سے کہا تیرے مقدر میں نہیں، عورت نے بڑھ کر کہا دیوانی تھی، شیدائی تھی، سچی ماننے والی تھی، حضور اگر میرے مقدر میں ہوتی تو آپ کی چوکھٹ پر کیوں آتی؟ مقدر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا، آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں وہ لینے کے لیے جو میرے مقدر میں نہیں ہے۔ میرے غوث کے ہاتھ اٹھ گئے، دریائے کرم جوش میں آ گیا، عرض کرتے مولا اس کو ایک بیٹا عطا فرما۔ ارشاد ہوا عبد القادر میرے محبوب اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو اولاد مانگ رہا ہے۔ عرض کیا مولا اب ایک نہیں دو عطا فرما۔ ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں ہے تو دو کہتا ہے، عرض کیا اب تین عطا فرما۔ پھر ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں تو تین کہتا ہے، عرض کیا چار عطا فرما۔ ارشاد ہوا ایک نہیں تو چار کہتا ہے، کہتے پانچ عطا فرما۔ ارشاد ہوا ایک نہیں تو پانچ کہتا ہے، گنتی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، 11ویں والے پیر 11 پر آ گئے، اب اس کو 11 بیٹے عطا فرما۔ اللہ اکبر، ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں ہے تم 11 مانگ رہے ہو۔ عرض کیا اگر دینا نہیں تھا تو اپنا محبوب کیوں بنایا؟ ارے جب محبوب بنایا ہے تو عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ سبحان تقدیر اللہ، بدلنے کی شان اللہ نے ان کو عطا کی ہے، سبحان وہ اللہ، تقدیر بدلتے ہیں، اللہ نے اپنے قلم کو ان کے قبضے قدرت میں عطا کر بے شک بے شک، اسی لیے تو میرے برادر نے میری توجہ اس طرف کرائی، اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا ہے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا۔ سبحان ہمیں اللہ، اور کچھ بننے کی ضرورت نہیں ہے، آہا، قادری کر سبحان اللہ، قادری رکھ قادری جو میں اٹھا، آمین، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ آمین آمین، سبحان اللہ، غوث پاک قدرت نما ہے، بے شک بے شک، ارے کوئی ولی رسول نما ہوئے ہیں، جو رسول نما ہوئے انہوں نے رسول کا دیدار کرایا۔ میرا غوث رسول نما بھی ہے قدرت نما بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ نے ان اللہ، کو قدرت نما بنایا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ارے اللہ تو اللہ ہے، نبی کی طاقت ہے جس کو جو چاہے۔ بے شک بے شک، اسی لیے تو مرشد کہتے ہیں پیران پیر کی بات کر رہا ہوں پھر پیر کی نہ کروں۔ میرے پیر کہتے ہیں
जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। जब वो मुख्तार कुल नबी हैं, जब नबी की ताकत का ये आलम है, खुदा की ताकत का आलम क्या हो। बात तकदीर बदलने की चल रही है। वो वाकया आप जहन में रखें, मैं उस तरफ से हट न जाऊं, मुझे याद दिलाएं वो कदम वाला वाकया। लेकिन चूंकि तकदीर बदलने की बात चली है, एक खातून का बच्चा मर गया, इंतकाल हो गया उसका। वो आई रोते धोते कि मेरा बच्चा मर गया। लोगों ने कहा अबू सालेह का बेटा, अबू सालेह का शहजादा, नन्हा सा बच्चा है, उसका शौक है कि वो बच्चों को जमा करके खेलता है। बच्चों मर जाओ तो वो सब गिर पड़ते हैं, और कहता है बच्चों जिंदा हो जाओ तो वो सब उठ जाते हैं। हाय हाय, कोई गिल्ली डंडा खेले, कोई कचोली खेले, कोई गेंद खेले, मेरा गौस अजीब खेल खेलता है। सुभान अल्लाह। अरे इनका खेल बचपने में वो है, ये बच्चे ऐसे हैं कि ये कच्चे इनकी तरह नहीं हो सकते। बेशक ये नबी की तरह होने की दावा करते हैं। अरे जरा मेरे गौस की तरह तो होके दिखाओ। बचपने में खुदा जाने क्या क्या खेला है, लेकिन ये मेरे गौस की शान है जो यूं खेलते हैं। खेल खेल मुर्दे जिलाते हैं। सुभान अल्लाह। खेल खेल मुर्दे जिलाना जिसकी शान हो। अरे अब्दुल कादिर जिलानी बता रहे हैं कि मेरे नाना की बराबरी करने वालों पहले मुझे तो देख लो, सुभान मुझे अल्लाह। देखने वालों पहले मेरा बचपना तो देख लो। बचपन कैसा है, खेल खेल मुर्दे जिला रहे हैं। लोगों ने कहा अबू सालेह का बेटा अब्दुल कादिर नन्हा सा बच्चा है, बच्चों से कहता है मर जाओ तो गिर पड़ते हैं, कुम बिस्मिल्लाह कहता है तो जिंदा हो जाते हैं। जब वो बच्चों से कहे मर जाओ तो अपना बच्चा मरा हुआ मिला देना। वो लाई, जब बच्चे गिर पड़े तो अपना बच्चा मिला दिया। मेरे गौस ने कहा कुम बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अपने सुन्नी मसलक पर कुर्बान ना हो जाऊं। सुभान अल्लाह। अरे जिसका एक फर्द ऐसा है, जिसका एक फर्द ऐसा है, हम ये मसलक क्यों छोड़े। लोग नए नए मसलक लाते हैं, हमारा मसलक तो वही है जो अहले सुन्नत व जमात है, जो आला हजरत का मसलक है, सुभान अल्लाह। जो इमाम आजम का मसलक है, जो गौस आजम का मसलक है, जो मखदूम अशरफ का मसलक है। क्या मसलक है हमारा, हम उस मसलक को क्यों कबूल करें जिसमें नबी की ताजीम हराम हो। माज़अल्लाह। सुन्नियों याद रखो, दौलत की रेल पेल पर न जाना, आखिरत में कोई काम नहीं आएगा, ना मौलवी काम आएगा, ना मुल्ला काम आएगा। मेरे गौस ने फरमाया अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, एक नहीं 70 मरतबा अब्दुल कादिर जो तुझसे प्यार करेगा उस पर मैंने जहन्नम को हराम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11वीं करने वालों, ऐ मेरे गौस के नाम पर हर महीने फातिहा दिलाने वालों, ये मोहब्बत की अलामत है, इसको कभी छोड़ना नहीं। अगरचे ये नफल है, मुस्तहब है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं। जिस दिन इसको छोड़ दोगे उस दिन बहुत दूर जा पड़ोगे। ना नमाज छोड़ो ना नियाज छोड़ो, दोनों का दामन मजबूती से पकड़े रहो। अर्ज कर रहा था, उस औरत ने अपने मुर्दे बच्चे को मिला दिया बच्चों में। मेरे गौस ने कहा कुम बिस्मिल्लाह। सब खड़े हो गए, वही मरा रहा। तो औरत कदमों पे गिर गई, शहजादे सबके बच्चे जिला दिए, मेरा इरशाद हुआ माई जिसको हमने मारा था उसको जिला दिया। सुभान। जिसको खुदा ने मारा हम उसको कैसे जिला सकते हैं। अर्ज किया शहजादे कदम नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा बच्चा जिंदा न हो जाए। आसमान की तरफ देखा, नन्हे नन्हे हाथों से मिटाया, हवा में कुछ मिटाया और अपनी उंगली के इशारे से कुछ लिखा और बच्चे की तरफ तवज्जे कह के कहते कुम बिस्मिल्लाह। उठकर खड़ा हो, सुभान अल्लाह, उठकर खड़ा हो गया। बच्चे को जिंदा देखकर फिर कदम पकड़ लिए। ये बताइए आपने हवा में मिटाया क्या, लिखा क्या? फरमाया माई तेरा काम हो गया, चली जा। कहा नहीं जाऊंगी, जब तक बताएंगे नहीं जाऊंगी। तो फरमाया माई
तेरा बेटा लोहे महफूज पर मैंने देखा मुर्दों की फहरिस्त में उसका नाम लिखा हुआ था, तो मैंने लोहे महफूज से मुर्दों की फहरिस्त से तेरे बेटे का नाम मिटा दिया और जिंदों की फहरिस्त में मैंने उसका नाम लिख दिया। अल्लाह ने तेरे बेटे को जिंदगी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक तकदीर बदलते हैं। गौस पाक मुझे टेंशन नहीं है, तकदीर पर मेरा ईमान है, लेकिन टेंशन नहीं है जो तकदीर बदलते हैं। अरे मुकद्दर बदलते हैं, सबको ऐसा पीर नहीं मिला। बेशक बेशक हमारा पीर गौस पाक है, सुभान अल्लाह, जो पीरों का पीर है। अरे लोग जो है ना पीर के मुरीद होते हैं, पीर के, मेरा गौस पीरों का पीर है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह, पीर का मुरीद नहीं, पीरों का पीर है। सुभान अल्लाह। पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं, या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं, या गौस अल मदद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक तकदीर बदलते हैं। डॉक्टर इकबाल यहीं आकर कलम से लिख देते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये गौस की शान है। बात ये हुई, बगदाद का एक ताजिर था, उस ताजिर ने उसके पीर शेख हम्माद जो गौसे पाक के सीनियर थे, अपने पीर के पास आया, हुजूर मुझे तिजारत के लिए जाना है दूसरे मुल्क, और उस मुल्क में जाकर मुझे तिजारत करनी है। पीर साहब ने गर्दन झुकाई। शेख हम्माद भी कोई मामूली आदमी नहीं थे, वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उस जमाने में पीर बनता ही वो था जो बुजुर्ग हो। आज तो शिरनी बढ़ती है खिलाफत है, और जिसको कुछ नहीं आता वो भी पीर बनता है, इल्ला माशा। इसलिए सुन्नियों दामन पकड़ो तो जरा सोच समझ के पकड़ा करो, किसी के भी हाथ में हाथ मत दे दिया करो। अरे जिसको इस्तिंजा की सुन्नतें मालूम नहीं, आजकल उनके मुरीद, और फिर पीर साहब भी अपने एजेंट बना कर रखते हैं, और फिर लोग तैयार करके रखते हैं, भाई मुरीद हो जाओ, मुरीद हो जाओ। ऐसे वैसे का हाथ मत पकड़ना। जो शरीयत का पाबंद हो, सुन्नी सही अकीदा हो, आधा तीतर आधा बटेर ना हो, टना टन सुन्नी हो, आला हजरत के मसलक पर हो, ऐसे आदमी के हाथ में हाथ देना। वरना याद रखना, जो ये कहे कि इसके पीछे भी नमाज हो जाती है और उसके पीछे भी नमाज हो जाती है, ऐसा पीर तो खुद डूबा होगा, तुम्हें क्या तिरा सकेगा। इसलिए सुन्नियत एक नंबर पर, शरीयत और तकवे की पाबंदी दूसरे नंबर पर। और जरा सिलसिला भी देख लेना, कहीं से कटा पिटा है तो नहीं, कहीं से कटा पिटा होगा तो तुम पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए ये बातें कड़वी है लेकिन कीमती है, इसलिए इस पर अमल करना। तो शेख हम्माद रदी अल्लाह ताला भी बड़े पाए के बुजुर्ग थे। गर्दन झुकाई, जरा सोचो तो सही, जो गर्दन झुकाकर लौहे महफूज देख ले, उस पीर की शान भी कितनी बुलंद होगी। हजरत शेख हम्माद ने अपने मुरीद से कहा, बेटे इस सफर में तेरी तकदीर में लिखा हुआ है कि जब तू सफर करेगा तो वापस आते वक्त तुझे डाकू लूट लेंगे और तुझे कत्ल कर देंगे। लेकिन ताजिर तो ताजिर होता है। पीर साहब ने जब इजाजत नहीं दी कि तू लूट लिया जाएगा, मुनाफा बहुत कमा कर आएगा, लेकिन रास्ते में तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, उस ताजिर की दिल की धड़कनें तेज हो गई, परेशान हो गया। अब सोचा इस मुसीबत से निजात कौन दिला सकता है, तो सोचा कि पीर ने मना किया, लेकिन एक बड़ी बारगाह अभी बाकी है, पीराने पीर की चौखट बाकी है। पीर के यहां से निकले और फौरन पीराने पीर के यहां, इसलिए कि अगर ताजिर को पता चल जाए कि मुझे फला काम में मुनाफा ज्यादा होगा तो वो कर ही रहता है। और जब वो पीराने पीर के आस्थाने पर पहुंचा, मेरे पीर, बड़े पीर मेरा गौस अपने तलबा को मदरसा पढ़ा रहे थे, जा करके बैठ गया और अर्ज करने लगा, या गौसुस सकलैन, मुझे जाना है तिजारत के लिए, क्या इजाजत है? फरमाया जा, इजाजत है, चला जा। कहा हुजूर मेरे पीर ने मना किया। फरमाया जा, चला जा, इसलिए कि वली वो भी है, वली ये भी है, लोहे महफूज वो भी पढ़ रहे हैं, लोहे महफूज ये भी पढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखना, लोहे महफूज हर वली पढ़ सकता है, लोहे महफूज को हर वली बदल नहीं सकता। ये मकाम सबको नहीं दिया गया है, ये मर्तबा सबके पास नहीं है, ये शान सबके पास नहीं है। वो तो गौसुल अगवास है, वो तो कुतुबुल अक्ताब है, वो तो महबूब सुभानी
पानी है, अरे जिनकी शान ये है अगर भूखे रहे तो अल्लाह कहता है अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खा ले, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, वो बढ़ाए ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। अल्लाह अल्लाह अकबर। मेरे गौस ने फरमाया जा जा चला जा, अल्लाह तेरे माल में बरकत देगा, अल्लाह तेरी दौलत में बरकत देगा, तू बहुत कमा कर वापस आएगा। वो चला तो गया लेकिन डर भी था, पीर ने मना किया, पीराने पीर ने इजाजत दी, गया तो खूब मुनाफा आया, और जब मुनाफा आया और उसके बाद जब माल लेकर वापस आने लगा तो रास्ते में सो गया। सोया तो ख्वाब क्या देखा, ख्वाब के अंदर डाकू आए, लूट लिया, कत्ल कर दिया, तिक्के बोटी उड़ा दिया। उसके बाद ये घबरा करके जैसे ही ख्वाब से बेदार हुआ तो पूरा बदन थर थर कांप रहा था, माल एक जगह भूल चुका था, जल्दी से वहां से समेटा और जल्दी जल्दी बगदाद की तरफ आया। अब जैसे ही बगदाद में कदम रखा तो दिल में ख्याल आया, पीर ने मना किया था कि कत्ल हो जाओगे, पीराने पीर ने इजाजत दी थी, सबसे पहले जाऊं किसके पास, पीर के पास जाऊं कि पीराने पीर के पास जाऊं। अभी यही सोच रहा था कि सामने से उसके पीर मिल गए, शेख हम्माद मिल गए, कहा बेटे जाओ पहली फुर्सत में गौस पाक की बारगाह में हाजिरी दे। अल्लाह अकबर। जब पहुंचे वहां पर तो नजर पेश की, दुआएं ली, और इसकी हुजूर बात समझ में नहीं आती। मेरे पीर ने कहा था कत्ल हो जाओगे और आपने इजाजत दी और मैंने ये ख्वाब देखा, फरमाया सुन तेरे पीर ने सच कहा था, तेरे मुकद्दर में लिखा था कि तू कत्ल हो जाएगा, लेकिन मैंने 70 मरतबा अल्लाह से तेरे लिए दुआ की तो अल्लाह ने तेरी तकदीर मेरी दुआ से बदल दी, और अल्लाह ने मेरे मानने वालों का ये हाल बना दिया कि अगर मुकद्दर में कोई तकलीफ लिखी हो तो अल्लाह उसको ख्वाब में दिखा करके मिटा देता है और उसको मुसीबत से बचा लेता है। मैंने अपने मानने वालों की मुसीबत को ख्वाब में तब्दील कर दिया, जो तेरी तकदीर में था मैंने ख्वाब में दिखाकर तुझे बचा लिया। गौस तकदीर बदलती, औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महव इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। ऐसा गौस मेरा गौस है। अब बात बहुत आगे न चले, अर्ज ये कर रहा था कि सरकार नहीं चिढ़ते क्योंकि उनके दारुल इफ्ता वली से इसलिए चिढ़ते हैं कि ये उनके यहाँ नहीं है, और जो आइटम जिसकी दुकान में ना हो तो चिढ़ना तो उसकी फितरत है, वो तो चिढ़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत में वली मौजूद है, और आजकल से नहीं है, दौरे सहाबा से है। इमाम हुसैन जैसा वली हमारी जमात में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसा वली हमारी जमात में है, इमाम बाकर जैसा वली हमारी जमात में है, इमाम जाफर जैसा वली हमारी जमात में है, मूसा कादिम जैसा वली हमारी जमात में है, अली रज़ा जैसा वली हमारी जमात में है, अली नकी जैसा वली हमारी जमात में है, इमाम मोहम्मद तकी जैसा वली हमारी जमात में है, हसन अस्करी जैसा वली हमारी जमात में है, और करीब क़यामत जब इमाम मेहदी जैसा वली आएगा वो भी सुन्नियों के अंदर आएगा। सुभान अल्लाह। हर वली हमारी जमात में है। बेशक। मेरे दोस्त ने कहा मेरा कदम हर वली की गर्दन पे सबने झुका दिया। और आपने गरीब नवाज का तो सुना, गरीब नवाज उनकी शान में कहते या गौस मुअज़्ज़म नूर हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। अरे जिसकी मनकबत गरीब नवाज पढ़े, जिसकी मनकबत, यारों मुरीदों से मनकबत पढ़वाना आसान है, मेरा गौस वो है जो गरीब नवाज से अपनी मनकबत पढ़वा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या गौस मुअज़्ज़म नूर हुदा। और सुन लो, हिंदुस्तान का हर वली लायक ताज़ीम है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई वली गरीब नवाज से बड़ा नहीं है। इसलिए लोग अगर मेरे गौस से किसी को बढ़ाना चाहते तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो हिंद का सुल्तान है वो अपनी गर्दन मेरे गौस के आगे झुका रहे हैं, मनकबत पढ़ रहे हैं। या गौस मुअज़्ज़म नूर हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा सुल्तान दो आलम कुतुब उला।
میرے غوث کو غریب نواز نے کہا سلطان ہے تو عالم، دونوں عالم کا سلطان، قطب اولا، حیرات جلالت ارض و سما۔ میرا غوث وہ ہے جس کی عظمت کو دیکھ کر زمین اور آسمان حیران ہے۔ اور غوث کو غوث کس نے کہا؟ غریب نواز، یا غوث معظم نور ہدا، سبحان اللہ، یہ میرے غوث کی شان ہے۔ ارے جس کی عظمت کے ڈنگ کے غریب نواز بجاتے ہیں وہ غوث کیسا ہے؟ اسی لیے ان کے دامن سے جڑ جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو آپ نے جب کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ، سب نے جھکا دی۔ ایک صاحب تھے، ان کے مرید بہت زیادہ تھے، ان تک جب ندا پہنچی تو انہوں نے کہا ہوں وہ بھی ولی میں بھی ولی، میں ان کے لیے گردن جھکا دوں گا، ان کے لیے گردن خم کروں گا۔ ارے غریب نواز نے پیشانی زمین پہ رکھی تو ہندوستان کے بادشاہ بنا دیے گئے، ہندوستان کے ولیوں کے سلطان بنا دیے گئے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، وہ ہند کا سلطان بن گیا۔ ارے کوئی وزیر اعظم آئے گا بدلتا رہے گا، لیکن میرے خواجہ کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، حکومت وقت یاد رکھے، یہاں تو کل دوسرا رہے گا، زمین ہندوستان کا راجا ہمارا خواجہ صدا رہے گا۔ اسی لیے ایک انگریز مفکر نے کہا میں ہندوستان میں ایک قبر کو حکومت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ معین الدین کی قبر ہے جو ہند پر حکومت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ تو جس نے گردن جھکائی اس کو دعا دی، ہند کا بادشاہ بنا دیا، اور جس نے کہا میں گردن جھکاؤں ان کے لیے، میرے غوث کی زبان سے نکل گیا جس نے میرا قدم اپنی گردن پر نہیں لیا، جس نے میرے لیے گردن نہیں جھکائی، اس کی گردن پر سور کا قدم۔ اب آپ ٹینشن میں نہیں آ جائیں گے کہ میں نے سور کا نام لے لیا تو 40 دن کھانا حرام ہو گیا۔ لوگوں کے اندر مشہور ہے نا، سور کا نام لے لو تو 40 دن کھانا حرام۔ تو ایسا نہیں ہے بھائیو، یہ سب غلط سلط مسئلے مت پھیلایا کرو، علم سیکھو۔ اور اسی کے الحمدللہ علم کی اشاعت کے لیے سنی دعوت اسلامی اور امن لہر کے سارے سنی مسلمانوں نے مل کر امن لہر میں دارالقضا کی بنیاد رکھی ہے، تاکہ علم پھیلے۔ اور ہماری بچیاں جو کورٹ میں جاتی ہے، ہمارے مقدمات جو کورٹ میں جاتے ہیں، اور کورٹ کو تو ہم عدالت بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عدالت اس کو کہتے ہیں جہاں عدل ہوتا ہو، اور جہاں قاتل جہاں بہترین کپڑے پہن کے گھوم رہا ہو باہر اور مقتول کے بھائیوں کو ہی قید کر دیا جاتا ہے، وہ کورٹ ہے۔ جہاں عدل نہیں ملے وہ کورٹ ہے، وہ عدالت نہیں ہے۔ عدالت تو اسلامی عدالت ہے۔ اس لیے سنی دارالقضا کا قیام امن لہر کے سنی مسلمانوں کا بہترین تاریخی قدم ہے۔ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، اس کام کے کرنے والوں کو اللہ اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کام کے کرنے والوں نے اپنی قوم کی عزت کو کورٹ میں جانے سے بچایا ہے، اور فیصلے یہاں لینے کی بات کی ہے تو انشاءاللہ مسلم پرسنل لا کا تحفظ ہوگا، اور گھر کی بات گھر میں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سنی مسلمانوں اب تمہیں دارالقضا کی طرف آنا ہے، اور الحمدللہ شہر مالیگاؤں سے ایک عظیم مفتی سنی دعوت اسلامی کے دارالافتاء کے اور دارالقضا کے صدر مفتی حضرت علامہ مفتی تنویر الحسین صاحب مصباحی، جو مبارک پور اشرفیہ سے پڑھ کے آئے ہیں، محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب کے شاگرد ہیں، وہ مہینے میں 1 مرتبہ آیا کریں گے اور آپ کو علم سے روسناش کرائیں گے انشاءاللہ۔ آپ علم سیکھیں، مسائل سیکھیں اور اپنے علم اور عقیدے کو مضبوط کریں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، جب اس شخص نے کہہ دیا جو واقعی ولی کہلاتے تھے، انہوں نے کہا میں عبد القادر کا قدم اپنی گردن پر نہیں لوں گا، تو میرے غوث کی زبان سے نکلا کہ جس نے میرا قدم نہیں لیا اس کی گردن پر سور کا قدم ہوگا۔ میرے غوث کی زبان ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ولی کی زبان پر خدا کلام کرتا ہے، اس لیے ولی کا دل نہ دکھانا، ولی کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، ان کے آستانوں پر جانا تو ادب سے جانا، احترام سے جانا، تعظیم سے جانا، کبھی ان کی بے ادبی نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے غوث نے کہا جس نے میرا قدم نہیں لیا اس کی گردن پر سور کا قدم۔
बोल तो दिया, बोल दिया। जब बोल दिया तो वो वली, विलायत छिन गई, विलायत छिन गई, पता भी नहीं चला, नहीं मालूम हुआ। मुरीदीन को लेकर हज के लिए निकले। जब हज के इरादे से निकले, 500 मुरीदीन आगे पीछे, ऐसी शान से वो हज के लिए निकले। जब निकले तो खैमा लगता, बड़ी इबादतें की जाती, दुआएं की जाती और काफिला आगे बढ़ता। चूंकि अब गौस का फैजान साथ न था, अब मकाम विलायत नहीं था, गौसे आजम की बद्दुआ लग गई थी। एक जगह पर खैमा मुरीदीन लगा रहे थे, बिल्डिंग पर एक लड़की खूबसूरत खड़ी हुई थी। पीर साहब की नजर उस लड़की पर पड़ी। चूंकि जब दिल में इश्क रसूल न रह जाए, दिल में अल्लाह का खौफ न रह जाए, तो निगाहें बहकती है, निगाहें आवारा होती है। और जब दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और खुदा का खौफ हो तो निगाहें नहीं बहकती। इसलिए वो दिल अपने आप का एहतिसाब करे। जो दिल रात के 3-3 बजे तक नेट पर गंदी पिक्चर, गंदी तस्वीर, गंदगी देखते हैं, जो लोग रात की तारीकियों के अंदर हीरो और हीरोइन को नंगा नाचते देखते हैं, वो अपने दिल का एहतिसाब करें कि उनके दिल में इश्क रसूल है कि नहीं है। क्योंकि जहां इश्क रसूल होगा, इश्क रसूल इतनी गैरतमंद चीज है, जहां खौफ खुदा होगा वहां आवारगी नहीं होगी। और खवातीन भी, गौस पाक की कनीज अपने आप को कहती है, जो वाकई गौसे आजम की कनीज होगी वो बेपर्दा नहीं घूमेगी, वो मोबाइल पर लड़कों से गुफ्तगू नहीं करेगी, वो पतले और बारीक लिबास पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करेगी। अरे गौस पाक की मां का आलम क्या था, जिसके वजूद को कभी किसी अजनबी ने न देखा हो, जिसने कभी किसी अजनबी मर्द को न देखा हो, जिसने कभी किसी से गुफ्तगू न की, वो गौस पाक की मां है। लेकिन आज गौस पाक के मानने का दावा करने वाले अपनी जिंदगी को आवारा कर चुके हैं, अपनी जिंदगी को अय्याश और मक्कार बना चुके हैं। ए गौस के गुलामों, कयामत के दिन से डरो, वो दिन आने वाला है। मर्दों पर भी औरतों पर भी अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? गौस पाक को क्या मुंह दिखाओगे? गौस पाक के नाना जान रसूल आजम को क्या मुंह दिखाओगे? अर्ज ये कर रहा था कि उस पीर की नजर एक लड़की पर पड़ी, दिल शैदा हो गया, दिल फिदा हो गया। लड़की को टिकटिकी बांध कर देखने लगे पीर साहब, और जब देखने लगे तो लड़की नीचे उतर आई। उन्होंने कहा, लड़की तू बड़ी खूबसूरत है, मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूं। लड़की ने कहा, आप पहले मेरे अब्बा से गुफ्तगू करें, अगर मेरे अब्बा इजाजत दे तो मैं आपके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप भी बड़े खूबसूरत इंसान है। वो लड़की ईसाई थी, नसारा से उसका ताल्लुक था। अल्लाह अकबर, वो बड़ी होशियार थी, चालाक थी। जब अपने बाप के पास लेकर के गई तो उसके बाप ने कहा, मैं अजनबी आदमी को, मुसाफिर को अपनी बेटी कैसे दे सकता हूं? आप पता नहीं कौन है, मैं पहले आपको जांचूंगा, पहले आपको परखूंगा, उसके बाद फिर तुम्हें अपनी बेटी दूंगा, और ताकि तुम मेरी बेटी को धोखा ना दे सको। उस शख्स ने कहा, आप कैसे मुझे जांचेंगे, आप कैसे मुझे परखेंगे? तो उस वक्त उस शख्स ने कहा, वो बहुत बड़ा मालदार था, उसने कहा कि हम लोग ईसाई हैं माअज़ल्लाह, और हमारे उनके यहाँ सूअर को मुकद्दस समझा जाता था। तो उसने कहा, मेरी बेटी दिन भर सूअर चराने जाती है, इसलिए उसके साथ पहले तुम्हें सूअर चराने जाना पड़ेगा, और मैं तुम्हें देखूंगा तुम ये काम सही से करते हो कि नहीं। वो शख्स तैयार हो गया, ठीक है मैं सूअर चराने के लिए तैयार हूं। याद रखो, ये बुरे दिन यूं ही नहीं आते, लोग वलियों की शान में जो मुंह में आता है बक देते हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता कि ये मार क्यों पड़ रही है, अल्लाह की सजा क्यों पड़ रही है। याद रखना, ये बुरे दिन यूं ही नहीं आते, ये जिल्लत के दिन यूं ही नहीं आते। अल्लाह का ऐलान है, जो मेरे वली से अदावत करे मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। मल्लेर में रहने वालों, धुलिया माले गांव और जलगांव वालों से रिश्तेदारियां करके अब तुम भी कहने लगे हो कि 11वीं में क्या
रखा है। और ये फातिहा का खाना क्यों करते हैं? याद रखो, जब तक गरीब रहते हैं तो गौस को मानते हैं, जब माल की चर्बी चढ़ती है तो कहते हैं गौस मदद नहीं कर सकते। फिर अल्लाह की लाठी उठती है, खुदा की लाठी में आवाज नहीं है। याद रखो, मतलबी मानने वाले मत बनो। गौस वो है जो दुनिया में भी मदद करेंगे और आखिरत में भी मदद करेंगे।